Good morning, team. So let's start. So yesterday I said we'll start at a sharp at 7:45 at 7:46. Okay. So we'll see what are all the testing types we have seen because we had 2 days of gaps. Okay. So usually we do testing in QA environment. Okay. So QA environment, what are all the tasks we do? Okay, or what are all the testings we do? One, okay, that is most of the time we do usability testing and functional testing. Okay, 98% we do only this much. Okay, security testing and performance testings are done based on the requirement of the customers. Okay, if customer wants you can hear me, right? Yes, sir. Okay. So based on the requirement of the customers, we do security testing and performance testing. Okay, these are two high-level testings. Okay, and most of the time we do use tools. Okay, software tools to test security testing and performance testing. Perform these two testing. So under usability testing, we do test user friendliness and easy of use, look and feel, and manual support testing. That we have content sensitiveness of user manuals. Okay, these are will be tested in usability testing. Okay, functional testing means correctness and completeness of an application with respect to customer requirements. Okay, and under this we have 6 types of testing. One is behavioral testing. Under this we're going to check the property of the objects, and behavioral testing, under that we'll get the objects like text box, radio button, list box, button, checkbox, etc. Okay, input domain, we need to check the size and type of the input we provide into the input text field. So we use two techniques to design the test cases that sorry. Okay, so we use two techniques. One is boundary value analysis, and another one is equals class partitioning, and next one is error handling. So usually the application prevents the user from the negative navigation. Okay, for invalid data. Okay, whenever the user inputs invalid data, that application supposed to interact with the customers in terms of giving an error sentences. Okay. So next comes backend average. Here we'll see the impact of database with respect to front-end user operations. Whatever the operations or the input they give when user given the application, so the same thing has to be updated in the backend. Okay, calculation based checks with respect to arithmetic operations, and service level testing is functionality we use in the sequence. Okay. So next comes is non-functional testing. We do test some of these, and many of these we don't do. So whatever I say, that you just say in the interview key. Okay, yeah, I've done this compatibility testing. I've done this non-functionality testing. Okay, they can ask you like, have you done any non-functional testing? Yes, I have done compatibility testing. You can say that. Okay. So yes, in last class we have seen a recovery testing. Recovery testing. Okay. So recovery testing means how our application is going to recover from abnormal situation to normal situation. Okay, that could be anything like a sudden shutdown of the application or going off of the internet connection, right? And same database as used by the two different applications. That is some synchronization issues. In that case, the application get crashed. Okay, for example, you might have seen कि सम ऑफ द टाइम क्या बोलते हैं इसको, आप लोग यूज करते फॉर्म फिलअप करते थे पहले. ओके, तो इन दैट केस इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन एप्लीकेशन कम्प्लीटली क्रैश और हैंग हो जाता था सिस्टम. सो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लेकिन मोजिला फायरफॉक्स, क्योंकि मोजिला फायरफॉक्स होने के बाद ये हैंग होने के बाद
so we'll up फोर स्किलिंग करते हैं, राइट? so in that case वापस को स्टार्ट करने के बाद यू विल गेट एन ऑप्शन रिस्टोर द प्रीवियस टैब्स, राइट? तो वहाँ पे क्या होता है, मीन्स it is trying to reload the tabs whichever you have opened. Okay, so ऐसे कुछ ऑप्शंस रहना चाहिए वेयर द यूजर नीड नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. कहाँ पे उस मिड में था, बीच में, तो एप्लीकेशन क्रैश हो गया, तो क्रैश होने के बाद वापस स्टार्ट करने के बाद होता एट द सेम पेज और एट द क्या बोलते हैं इसको, सेम एक्शन वेरी एज लेफ्ट ऑफ, वहाँ पे आना चाहिए. ओके, दैट इज रिकवरी और reliable testing. Okay, under compatibility testing we have seen forward of compatibility testing and backward compatibility testing. इसका ये कैसे बोल सकते हैं आप? एग्जांपल, फॉर एग्जांपल definition, we are going to test our application on different platforms or customer expected platforms. प्लेटफॉर्म बोले तो कुछ भी हो सकता है, ब्राउजर हो सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेक, दैट इज कॉल्ड compatibility testing. Okay, under that we have two types. One is forward compatibility and another one is backward compatibility. Forward compatibility means build is okay, means build is means हमारा application is okay, okay, but problem is with the OS or browser. ये तो बहुत कम होता है. if anything going wrong or any bug हमारा application में आ रहा है, तो फिर we cannot put any blames on OS or क्या बोलते हैं आप उसको, browsers. Okay, so backward compatibility means, आज क्यों बहुत लोग आए नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है, भूल गए क्या सब लोग? ये तो enable ही है. Okay, so in general test engineer is going to find the backward compatibility defects. Okay, एक मिनट में ग्रुप में डाल देता हूँ. सो वेरी इंपॉर्टेंट. और नेक्स्ट वन इज ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग. ये आप लोग किया करके बोलने का. ओके, यू हैव डन दिस टेस्टिंग. सो वन इज क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग. क्रॉस बोले तो मीन्स डिफरेंट ब्राउजर टेस्टिंग. ओके, डिफरेंट ब्राउजर टेस्टिंग में क्या क्या आप कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया, आई मीन एप्लीकेशन आपका कौन कौन सा ब्राउजर में यूज़ किया है और टेस्ट किया है. सो मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, आई एंड सफारी. But being an Indian, you can say you're not tested in Safari because Safari के लिए आपको Mac OS चाहिए. ऐसे कुछ जरूरी नहीं है, but you will get one thing like browser stack करके एक आप ये है, क्या बोलते हैं उसको, लैम्बडा करके भी है, ब्राउजर स्टैक करके भी है. यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट फीचर्स मीन्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बैकवर्ड ओएस भी यूज़ कर सकते हो. ओके, एंड आपका क्या बोलते हैं इसको, ब्राउजर्स भी, डिफरेंट ब्राउजर्स भी यूज़ कर सकते हो. यू गाइज नीड नॉट टू इंस्टॉल ऑल द ब्राउजर्स, और यू कैन से ओके, क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग बियॉन्ड क्रोम. ओके, ये बोलते हैं ब्राउजर स्टैक.
ब्राउजर स्टॉक एक ऐसे एप्लीकेशन है, यहाँ पे एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्चुअली परचेज भी कर सकते हैं। ओके, ये पूरा फीचर्स अवेलेबल नहीं है। ओके, क्रॉस ब्राउज़र में आपको सभी ये मिलता है, ब्राउज़र्स मिलता है और ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, बट आपको इसमें पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि फॉर ये टेस्टिंग करने के लिए। ओके, ये देख प्रोडक्ट्स है, लाइव ऑटोमेट, ये देखो ये सभी टेस्टिंग आप कर सकते हैं इसमें। ओके, दिखाता है, स्टार्ट होने दो। ओके, क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग बोले तो यू आर गोइंग टू टेस्ट योर एप्लीकेशन। Okay, you're going to test our application in different browsers. Okay, so आप लोगों के पास ये तो आराम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कौन कौन सा, ये देखो, ये साइन इन करने के बाद आपको आपके पास एक बहुत सारा ये आता है, जहाँ पे आप लोग, ये देखो आप लोग को दिए होंगे लोग, ये देखो क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, आई, सैमसंग इंटरनेट, एज, ओपेरा, एंड्रॉयड, अदर इसी ब्राउजर्स, ये सब भी आप लोग ऑपरेशन में, आई मीन आपका एक ही एनवायरनमेंट रेडी करके दिया है उन लोगों ने। यहाँ पे आप लोग कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हो। ओके, डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक बार ये इसको विजिट करो आप लोग। ओके, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि हैव यू यूज्ड एनी टूल्स फॉर ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। आप बोलो कि नहीं, मैंने इंस्टॉल किया है मेरे सिस्टम में एंड आई हैव यूज्ड क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग एंड क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। ओके, सो मोजिल्ला भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्रोम इंस्टॉल कर सकते हैं, आई इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन सफारी देर वॉज अ नो रिक्वायरमेंट फॉर सफारी, सो हम लोग ने यूज़ नहीं किया, बस सिंपल है। ओके, वर्जन कंपैरिजन ब्राउजर टेस्टिंग क्या होता है, सो एक ही सिस्टम रहता है, उसमें एक ही ब्राउजर रहता है, उसका डिफरेंट वर्जन। ओके, देखो मोजिला एंड क्रोम का आप इसका वर्जन डबल डबल इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वर्जन ऑटोमेटिक क्या होता रहता है, अपडेट होता रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो इसका वर्जन है 84.0.44 से। ओके, बट थिंग इज, अगर आप फायरफॉक्स का भी देखा भी ऐसे ही रहता है। ओके, अगर एक ही इसका ब्राउज़र का दो वर्जन अगर मेरे को चेक करना है, तो मैं इसमें चेक कर सकता हूँ, मीन्स इंटरनेट एक्सप्लोरर में वो रहता है। एक मिनट रुका। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, आपको दो वर्जन, आप इधर तो ऑप्शन नहीं रहता, तो ऐसे इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ही सिस्टम में दो इंटरनेट एक्सप्लोरर आप नहीं डाल सकते। ओके, दैट केस तो आप लोग कैसे, एक ही पूछ सकते हैं आप लोगों को कि हाउ डू यू इंस्टॉल टू वर्जन्स ऑफ सेम ब्राउजर्स, सेम ब्राउजर। ओके, एक ही ब्राउजर का दो वर्जन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप। ओके, ये तो सिर्फ आई में आ जाता है, तो गूगल क्रोम में और मोजिला फायरफॉक्स में तो वो तो ऑटो अपडेट होता रहता है। ओके, नेट कनेक्शन चला गया क्या? वॉइस थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो गया। हाँ क्या, लेकिन ये हो रहा है ना, आई मीन पूरा सुन रहा है आपको, या बहुत ही कट हो रहा है? सर आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक होती है। हाँ क्या, तो अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? हाँ सर। एक मिनट, ओके, आज का दिन मैं कल वाईफाई डिवाइस मंगा रहा हूँ, इंटरनेट तो है ही नहीं, निकाल दिया। ये देखो, इसका दो वर्जन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये देखो, जाने इधर जाने का, और प्रॉपर्टीज, सर इंस्पेक्ट एलिमेंट,
तो बोल के उसको कि इंटरनेट एक्सप्लोर जाऊंगा और यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया तो, नहीं तो EF12 भी, सॉरी EF12 भी किया ना तो आपको ऐसे आ जाता है। यहाँ पे देखो आपका वर्जन 11 में आप चला रहे हैं अभी। ओके, फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक रहेगा समझो, अभी आपका ये फेसबुक है। ओके, सो वर्जन चेंज होता ही थोड़ा सा स्लाइटली UI चेंज हो जाता है। ओके, ये देखो ये 11 चल रहा है, डॉक्यूमेंट मोड इज 11। अगर मैं वर्जन चेंज करना चाहता हूँ तो आई विल गो फॉर लाइक दिस 8, वर्जन 8 चेक करना है मुझे फेसबुक का 8, वापस रीलोड हो जाता है। ये देखो अभी तक आने का नाम ही नहीं ले रहा है, मीन्स ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है कंपेयर टू 11। ये देखो आया नहीं अभी तक, राइट। तो अभी मैं 11 का लिया, इमिडिएटली लोड हो जाता है। ये देखो आ गया, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। मीन्स वर्जन वाइज थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है। एक मिनट हाँ। सॉरी। सो ये आता है आपका वर्जन एक ही सिस्टम में, एक ही ब्राउजर का दो वर्जन कैसे इंस्टॉल कर सकते बोले तो, यू आर नॉट गोइंग टू, पहले आप ये लोग यूज करते थे कैसे, VMware करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वहाँ पे दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के वहाँ पे एप्लीकेशन आई मीन ब्राउजर इंस्टॉल करते थे, बट नाउ दैट इज नॉट द केस। सो डायरेक्टली डॉम ओपन करने का मीन्स इसको बोलते हैं कि डॉम एक्सप्लोरर। ओके, नहीं तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम लोग इधर वर्जन चेंज करते बोलने का। ओके, अभी देखो 8 इधर 9 का भी किया तो फिर वापस रीलोड हो जाता है, उसका हिसाब से फीचर्स इंस्टॉल हो जाते हैं। ये देखो अभी देखो आ ही नहीं रहा है, राइट। ये थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, आता है लेकिन बहुत स्लो आ जाता है, बस आ भी नहीं सकता, आए भी नहीं देखो ये, राइट। ये ऐसे थोड़ा UI का रिलेटेड चेंज हो जाता है। ओके, वर्जन और इधर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे UI मीन्स यूजर इंटरफेस में थोड़ा चेंजेस दिखता है whenever there is क्या बोलते हैं इसको, वर्जन चेंज और फायर आई मीन ब्राउजर चेंज होता है। ये देखो अभी 11 में दिख रहा है, ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर पासवर्ड है। ऑब्जर्व कर रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. ओके, सो ऐसे चेंजेस आपको आपको टेस्टिंग करना है। तो आपको पूछते हैं कि व्हाट व्हाट यू टेस्टेड इन ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। सो मैं क्या टेस्ट करता था, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी तो टेस्टिंग तो मैं करता हूँ, लेकिन उसमें क्या टेस्ट करने वाले हो? तो उसमें तो बहुत सारा चेंजेस हो जाता है, ब्राउजर जैसे चेंज करते हो एप्लीकेशन का ये भी चेंज हो जाता है, आई मीन क्या बोलते हैं इसको, बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो क्या क्या टेस्टिंग किया उसमें बोले तो, लिंक वैलिडेशन। लिंक वैलिडेशन बोले तो अभी आप कोई एक इसके ऊपर क्लिक किया तो कभी कभी ब्राउजर में क्लिक होता रहता है लेकिन यहाँ पे क्लिक नहीं होता। ये तो वेल टेस्टेड है फेसबुक, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बट थिंग इज, अगर आप कभी कभी आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट में मोड में रहता है ना, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि लिंक वैलिडेशन कर सकते हैं। लिंक बोले तो जहाँ पे भी लिंक करने आई मीन क्लिक करने के बाद इट शुड नेविगेट यू टू द डिफरेंट पेजेस, वो लिंक वैलिडेशन बोलते हैं। ओके, पेज नेविगेशन, पेज को नेक्स्ट पेज को जाना है, अभी पेजिनेशन करके बोलते हैं उसको। पेजिनेशन कैसे दिखता है आपको दिखाता हूँ। ये पूरा आप थोड़ा देख के रखो, गूगल करते रहो थोड़ा। ओके, पेजिनेशन बोले तो वहाँ पे नंबरिंग दिया रहती है, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 करके, वहाँ पे पेज नेविगेट होता है कि नहीं वो चेक करते आप लोग। ಇದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಗಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಗಿಡ ಚಂದ ಹಿಂಗೆ ಇಡು. ಹಾಂ ತೆಗಿ.
ओके, ये आप देखे होंगे पेजिनेशन करके, ये वाला, राइट। ये देखो, इसके ऊपर क्लिक करें नेक्स्ट पेज चले जाता है, इसके ऊपर क्लिक करें नेक्स्ट पेज चले जाता है, इसे ये पेजिनेशन बोलते हैं इसको। ओके, सो इसके ऊपर क्लिक करें नेक्स्ट पेज को जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेस्ट। नेक्स्ट आता है CSS इश्यूज एंड GUI इश्यूज। अभी जस्ट आपको दिखाया मैंने इधर CSS इश्यूज। अगर वही 2008 को डाल दिया वर्जन नंबर, तो इसको पासवर्ड भी नहीं दिखता इधर। इसको बोलते हैं कि प्लेस होल्डर, क्या डालना है उधर वो आपको ये ऐसे सिर्फ ऐसे दिखे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या डालना है, इधर क्या डालना है और इधर क्या डालना है, राइट। सो उसके लिए बोलते हैं कि प्लेस होल्डर मीन्स application is telling the user that what to put there, क्या डालना है उधर, वो दिखाता है, उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। यहाँ पे देखो अभी नहीं दिख रहा है, राइट। ऐसे चेंजेस GUI में थोड़ा चेंजेस होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में थोड़ा चेंजेस हो जाता है, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेस्ट। नेक्स्ट आता है टैब वैलिडेशन। क्या हुआ, अभी भी सुन नहीं रहा है क्या? समझ नहीं आ रहा है, और वॉइस ब्रेकिंग, ज्यादा ब्रेक हो रहा है। बहुत ब्रेक हो रहा है सर, ज्यादा ही। हेलो, हेलो, हेलो सर। हाँ ज्यादा ब्रेक हो रहा है सर ज्यादा ही ब्रेक हो रहा है सर अभी तो। अभी। हेलो, अभी सुन रहा है मेरे बात या नहीं? हाँ अभी आया सर, अभी आया यस सर, बट ब्रेक हो रहा है बहुत। अभी भी? यस सर। एक मिनट, वो मोबाइल को एक मिनट, मैं रिकनेक्ट करता हूँ, रुको नहीं तो। अभी